Hello friends, how are you? I hope so you are enjoying your living at home, staying at homes. So now we are going to start with the lecture SP. Very important question. What are the explained types of debentures? Now debenture is what? Acknowledgement of debt. Debenture is a borrowed capital. Debenture is issued for what? 5 to 10 years. Debenture is also called as medium term and long term funds. Debenture is paid fixed rate of interest. The person who purchased debenture is called debenture holder. Debenture is the creditor of the company. These points must be there. Debenture is what? Acknowledgement of debt. Debenture is a borrowed capital. Debenture is a borrowed capital. Debenture is issued for. Debenture is a long term or medium term capital. Debenture is paid fixed rate of interest. Debenture holder is the creditor of the company. So these are you have to keep in mind while writing the answer. These are very important. Debenture is a borrowed capital. Once again, saying that debenture is a borrowed capital. These come for 1 marks. Debenture is a borrowed capital. Debenture holder get dash at fixed rate. You have to write the word interest. Interest. Debenture is the dash of the company, creditor of the company. See, these are what is the one mark questions. You have to just try. They will ask in the one word. They will ask in the fill in the blanks. They ask in the match the pairs. These are the questions and complete the following sentence. These are the questions which will be there in the objectives. So you have to be very well across for these questions. ये क्वेश्चंस ये चैप्टर से आपको डिटेल्ड पढ़ना है और 12 A B C D जो भी ये लेक्चर सुनेंगे या बाद में सुनेंगे मैं एक ही बोलेगा आपको चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव्स ध्यान से आपके नोटबुक में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर सेकंड में आपको ध्यान से लिखना होगा. उसके बाद में ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव्स पूरा ऑब्जेक्टिव्स डिटेल लिखना है. जब कॉलेज स्टार्ट होगा तभी हम लोग ये बुक मांगेंगे हम लोग चेक करने वाले हैं. तो एसपी का मैं फिर से बोल रहा चैप्टर नंबर 1 तो हो गया. चैप्टर नंबर 2 चल रहा है. चैप्टर नंबर 2 में खाली 2 या 3 क्वेश्चन बाकी इसके बाद ख़त्म हो जाएगा. ये चैप्टर होने के बाद ये सब होने के बाद आई एम से आप लिखना आप स्टार्ट कीजिए. पहला आज जो पढ़ा हो वो आपके नोटबुक में होना चाहिए. मैं आपको उसका चार्ट भी देगा है. आई ऑल्सो गिविंग द चार्ट टू यू. ये चार्ट भी देगा है. चार्ट के साथ जो अभी शॉर्ट है टाइप्स ऑफ डिबेंचर कितना है वो सब आपको नोटबुक में लिखना है. जैसा मैं आपको ये व्हाट्सअप से तो भेजिएगा वैसे आपके नोटबुक में एसपी में उतारना है. ये कंपलसरी है. ये क्वेश्चन आने का चांसेस है तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गो फॉर दिस क्वेश्चंस. नाउ स्टार्ट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर. सिंपल ध्यान देने का. STRC STRC ये 4 वर्ड ध्यान देने का. S सेक्योर्ड, T ट्रांसफ़र, R रेडीमेबल, C कन्वर्जन. लास्ट के दो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. रेडीमेबल प्रिफरेंशियल्स, कन्वर्टेबल प्रिफरेंशियल. तो इसलिए खाली प्रिफरेंशियल निकालने का उसमें वर्ड डालने का डिबेंचर. इन स्टार्टिंग का दो बहुत इंपॉर्टेंट है. वन सेकेंड आई रिपीटिंग दैट. S स्टैंड फॉर सेक्योर्ड, T स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र, R स्टैंड फॉर रेडीमेबल. टेक्स्ट बुक में इधर रीपेमेंट दिया है. हम लोग रेडीमेबल पढ़ोगे क्योंकि उसमें बाद में समझ में आएगा. और लास्ट में दिया है कन्वर्जेंस. ठीक है सिंपल है. तो पहला है सिक्योर. तो अभी टोटल में STR से 4 बोला. जैसा मैंने प्रिफरेंस इन द जैसा हमने टाइप्स ऑफ प्रिफरेंशियल में देखा था. नॉट वैसे ही 4 CPCI बताया था. कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कम्युनिटिव, नॉन कम्युनिटिव, रेडीमेबल, इरेडीमेबल. तो वैसे इसमें भी सेम है. सिक्योर डिबेंचर एंड अनसिक्योर डिबेंचर्स. पहला एस का मतलब ध्यान देने का. एस secured debenture and unsecured debenture. What is secured debenture? Debenture which are secured against the assets of the company. Simple. The debenture which are secured on the assets of the company. The debenture which are secured against the assets of the company. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. The debenture which are secured against the assets of the company. Now, which asset? Particularly fixed asset. I am repeating one. Particularly fixed asset. ये क्लियर. पर्टिकुलरली फिक्स एसेट. अभी फिक्स एसेट कौन सा आएगा? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग,
furniture and fixtures. These are the what fixed assets. So these is very important. You have to just pay in mind that ध्यान देना है द डिबेंचर जो फिक्स एसेट्स के आगे में चार्ज किया जाता है या उसके आगे चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सिक्योर डिबेंचर. अभी ध्यान देने का व्हाट इज दैट. अभी डिबेंचर सिक्योर कैसा होता है और ट्रस्ट होता है. देखो हम लोगों ने पार्टी देखा था हम लोग ने CT याद होगा ना. डिबेंचर का फीचर्स में पार्टी दिया था. पहला है कंपनी, बाद में है ट्रस्टी, बाद में डिबेंचर है. ये ट्रस्टी जो होते हैं ना ये तो ध्यान देते हैं सिक्योर डिबेंचर. जो ट्रस्टी था हम देखा था फीचर्स में देखा था पॉइंट नंबर 7 में. तो ये ध्यान देते हो लोग. पे अटेंशन दैट. नाउ पे अटेंशन व्हाट इज दैट. अटैक पर मैंने डिबेंचर लिया है, हम लोग ने डिबेंचर इशू किया है. थिंक फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट थिंक फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू. हमने डिबेंचर लिया है, बात सही है. तो देख लिया हम लोग डिबेंचर इशू किया. सेल वर्ड शुड नॉट बी यूज नाउ, बट यूज द वर्ड इशू. वी आर इशू डिबेंचर टू द पब्लिक. पब्लिक पूछती है बाबा आप ठीक है हम लोग आपको पैसा दे गए, लेकिन पैसा देने के बाद आप हमको पैसा रिटर्न कैसे दोगे. हाउ विल यू द मनी रिफंड बैक टू अस. इफ़ द कंपनी डज नॉट पे हैव द मनी व्हाट विल हैपन. देखो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. ठीक है हमने आपको पैसा दिया, आप डिबेंचर बोल रहे बात सही है, लेकिन कुछ समय के बाद 10 साल के बाद आपके पास पैसा नहीं हो तो क्या हो. हम लोग गारंटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है. तो कंपनी क्या बोल रही है आपका जो डिबेंचर है ये हम लोग को फिक्स एसेट है ना. ये फिक्स एसेट के अगेंस्ट हम लोग दे रहे. अभी टेक पर फिक्स एसेट है प्लांट एंड मशीनरी. हम लोग बोलिए प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में आपको दे रहे. तो प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट दे रहे बात सही है. अगर 10 साल के बाद हम लोग की कंपनी के पास पैसा नहीं होगा, आप ये प्लांट एंड मशीनरी बेचने का आपका पैसा रिकवर करने का, ये उसका मीनिंग है. अभी वो पब्लिक क्या पूछेगा सर लेकिन ये प्लांट एंड मशीनरी बात सही है लेकिन इसका कीमत कम हुआ तो. क्वेश्चन बात सही है. अभी उसका कीमत 1 लाख है लेकिन 10 साल के बाद उसका कीमत कम हुआ तो व्हाट वी से दैट आप लोग का जो ट्रस्टी है वो यहाँ बैठेगा, वो देखेगा इसका कीमत कम नहीं होना चाहिए, इसका कीमत मेंटेन होना चाहिए. मेंटेन, ये एसेट का कीमत मेंटेन होने की कोशिश करना चाहिए. वो ट्रस्टी जो आएगा वो देखेगा. तो इसलिए डिबेंचर आर सिक्योर्ड. एक वर्ड दिया है द डिबेंचर सिक्योर्ड बाय द ट्रस्ट डीड. तो ट्रस्टी आके यहाँ बैठेगा, वो देखेगा एसेट जो अपना डिबेंचर उसके अगेंस्ट में है, जो एसेट के अगेंस्ट में उसका कीमत कम नहीं होना चाहिए, उसका कीमत मेंटेन करना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड द सिक्योर्ड डिबेंचर. इज इट क्लियर. द डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द assets of the company, it is called secured debenture. Assets, the assets particularly fixed assets such as plant and machinery, furniture and fixtures, land and building. ये एग्जाम्पल आपको लिखने का. एंड इट इज़ सिक्योर्ड बाय ट्रस्ट डीड. ये ट्रस्ट डीड से सिक्योर होता है. ट्रस्ट डीड मतलब क्या है, एग्रीमेंट है. ट्रस्ट डीड मतलब क्या है, एग्रीमेंट है. एग्रीमेंट लिखा होता है. अगर मैंने लैंड की हिस्सा से दिया लैंड, कंपनी का जो ज़मीन होता है उसके अगेंस्ट, तो हम लोग डीड बनाते. अगर हम लोग पैसा नहीं दे सकते तो लैंड का जो भी कॉस्ट उस टाइम में होगा, आप लोग का जो डिबेंचर होगा, जो ज़मीन बेचने का उसका पैसा ले लो. एक ट्रस्ट डीड हम लोग बनाते हैं. तो अंडर राइटिंग है. उसके अपोजिट में आता है अनसिक्योर्ड. उसके उल्टा लिखने का द डिबेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी. सिंपल है. द डिबेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी. Simple. The debentures which are not secured against the assets of the company is called unsecured debenture. The debentures which are not secured against the assets of the company is called unsecured debenture. अभी जाते हैं, मैंने क्या बताया था पहला एस खत्म हो गया. अभी टी. टी ट्रांसफ़र. टी स्टैंड फॉर ट्रांस. एस पी पहला एस था. एस में कौन सा था, सिक्योर्ड. पहला कौन सा आएगा, सिक्योर्ड डिबेंचर. बाद में कौन सा रहेगा, सेकेंड अनसिक्योर्ड. नाउ वी आर गोइंग फॉर द व्हाट, टी. टी में पहला कौन सा दिया है, रजिस्टर्ड डिबेंचर. जो सर आपने टी बोला लेकिन इसमें अलग वर्ड क्या आया, रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड द बेगर डिबेंचर. सिंपल. द डिबेंचर विच आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द डिबेंचर विच आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर. सिंपल होगा. मैं आप बोले सर टेक्स्ट बुक में नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं. सिंपल. डिबेंचर which are registered by the company is called registered debenture. अभी आप बोलिए क्या है,
Simple है. The company keeps the register, that is called register of debenture holder, in which the name of the debenture, address of the debenture, particulars of debenture holders are maintained or entered. This is called registered debenture. The transfer, the debenture can be transferred by transfer deed. द डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर बाय ट्रांसफर डीड. मैंने फीचर्स में देखा था डिबेंचर ट्रांसफर हो सकता है कि हाँ, लेकिन ट्रांसफर डीड से होता है. मैंने बताया था व्हाट आई सेज दैट 1 रुपीज़ का पहले 25 पैसे का ट्रांसफर डीड छोटा फॉर्म आता था इतना बड़ा लीगल साइज़ का, उसमें पूरा डिटेल भरने का था. अभी वो 1 रुपी 25 पैसे मार्केट में नहीं है अभी, तो 1 रुपीज़ का हम लोग ले सकते हैं. तो 1 रुपीज़ का वो मिलता है और उसमें हम पूरा डिटेल बने. तो ट्रांसफर डीड वो होता है. ट्रांसफर डीड, डोंट गेट द कन्फ्यूज, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर. तो इज इट क्लियर? रजिस्टर्ड डिबेंचर विच registered debenture are those debenture which are registered by the company, in which name of the debenture holder, address of the debenture holder, value of the debenture holder, detail are entered in this register. This is called registered debenture. Registered debenture can be transferred by transfer deed. ये ट्रांसफ़र होता है by transfer deed से होता है. ऐसा नहीं मैंने आपके पास डिबेंचर मैंने आपको दे दिया, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको लीगली जाना होगा. वो ट्रांसफ़र फॉर्म भरना पड़ता है, भरने पे वो सिग्नेचर करना पड़ता है. आपका नाम पे करने का है तो आपका नाम में लिखेगा, मेरा सिग्नेचर आएगा, आपका भी सिग्नेचर आएगा, फिर वो हम लोग कंपनी में देंगे डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ, फिर वो ट्रांसफ़र होके आता है. तब तक वो ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है. उसके अपोजिट में क्या है? बेगर डिबेंचर. बेगर, BEARER, बेगर डिबेंचर्स. ये बेगर वर्ड हमने कहाँ देखा होगा? चेक पे देखा होगा. चेक पे होता है ना, हम लोग चेक देखो उसमें बेगर और ऑर्डर ऐसा वर्ड लिखा है. अभी बेगर मतलब क्या है? सिंपल है, अननोन. बेगर मतलब क्या है? अननोन. अभी बेगर मतलब क्या है? सिंपल है, मैंने चेक पे साइन कर दिया, आपको मिल गया, तो आप बैंक में जाके पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें कोई लिखा है ऑर्डर या क्रॉस किया नहीं है, वो सिंपल है. दिस कॉल्ड द डिबेंचर जिसमें किसी का नाम नहीं होता, डेट इज कॉल्ड द बेगर डिबेंचर. सिंपल. डिबेंचर विच आर नॉट रजिस्टर्ड इज कॉल्ड बेगर डिबेंचर. उसमें रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर का नाम होता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेगर डिबेंचर. The name of holders are not entered on the bearer debentures. The name does not appear on the register of debenture. सिंपल है, रजिस्टर ही नहीं है. जो डिबेंचर रजिस्टर नहीं है उसको बोलने का बेगर डिबेंचर. इट कैन बी ट्रांसफर बाय इजीली बाय मियर डिलीवरी. सिंपल. द डिबेंचर विच आर नॉट रजिस्टर्ड इज कॉल्ड बेगर डिबेंचर. इट कैन बी ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी. इट कैन बी ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी. अभी आप बोले सर ये बात सही है, लेकिन उनको इंटरेस्ट कैसे देगा? इंटरेस्ट तो हम लोग चेक से आता है या इंटरेस्ट वारंट से आता है. तो इसमें कैसे कर, इसके साथ इंटरेस्ट कूपन अटैच किया जाता है. ध्यान देने का, इसके साथ एक कूपन अटैच किया जाता है, उसको हम लोग इंटरेस्ट कूपन बोलते हैं. वो इंटरेस्ट कूपन अटैच किया जाता है. अभी टेक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेगर डिवेंचर है. इफ़ वी हैव अपने हम लोग के पास बेगर डिवेंचर है, तो डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है उसके साथ वो कूपन से अटैच किया जाता है. उनको मालूम है क्योंकि अभी 10 साल के लिए है तो 10 कूपन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 होते हैं. तो हम लोग कूपन क्या करने का, कूपन जाके जाने का कंपनी में जाने का, वो कूपन भर के देने, कंपनी देगी कि इसका अपना डिबेंचर कितना है, स्टैम्प मार के वो रख देगी, उसके पास पैसा आपको देगी. ये काम सिंपल है. ये एक इंटरेस्ट कूपन है. सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसा जब तक अपने पास, जब तक आपके पास अपना डिबेंचर है तब तक, मैच्योरिटी तक. 10 साल खत्म होने के बाद वो मैटर खत्म हो गया. लेकिन 10 साल तक है तो 10 कूपन उसके साथ होगा. और वो कूपन खाली बैंक कंपनी में जाने का, कंपनी में जाने का, कंपनी को दिखाने, कूपन दे के आने का, आप अपना सिग्नेचर करने का, कंपनी स्टैम्प मार के आपको दे देगी, पैसा रिटर्न कर दे, आपको देगी, इंटरेस्ट देगी. दिस इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सिंपल है. द डिबेंचर विच आर नॉट रजिस्टर्ड इज कॉल्ड बेगर डिबेंचर. बेगर डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी. इंटरेस्ट कूपन इज अटैच विद दिस डिबेंचर. इंटरेस्ट कूपन इसके साथ अटैच किया जाता है. ये क्लियर? 4 पॉइंट हो गया. पहला कौन सा देखा हम लोग ने? सिक्योर्ड. सिक्योर्ड में पहले क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर. सेकंड कौन सा है? टी स्टैंड फॉर व्हाट? ट्रांसफर. ट्रांसफर में पहला कौन सा है? रजिस्टर्ड डिबेंचर. सिंपल. डिबेंचर विच आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी. एसेट कौन सा? फिक्स एसेट. फिक्स एसेट में क्या होता है? प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब है. दिस डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर बाय ट्रांसफर डीड. दोनों में फ़र्क है. डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर बाय ट्रांसफर डीड. उसके बाद क्या देखा हम लोग ने? बेगर डिबेंचर. द डिबेंचर विच आर नॉट रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एसेट्स इज कॉल्ड बेगर डिबेंचर. इट कैन बी ट्रांसफर. नो नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर इज एंटर्ड.
and no register of debenture holder is maintained. It can be transferred by mere delivery. An interest coupon is attached with this certificate. That is called बेगर डिबेंचर. अभी सिंपल है, अभी बाकी का चार तो सिंपल है, आपको मालूम है. मैंने आग बताया, आग मतलब क्या, रिडीमेबल डिबेंचर. द डिबेंचर विच आर रिडीमेबल ऑन द मैच्योरिटी दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर. बोला आप बोल सर ये कहाँ से ढूंढ के निकाला, सिंपल है. द डिबेंचर विच इज पेबल एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर. मैंने एक वर्ड याद बोला था, याद होगा तो. रिडीमेबल प्रिफरेंशियल में मैंने क्या बताया, एक्सपायरी. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द, इज सिंपल बोला, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डिबेंचर the company pays the amount that is called redeemable debenture. Simple, simple, very simple. Debentures are redeemable at the end of the maturity. At the end of the maturity. Maturity what याद नहीं होगा. At the end of the some fixed period. At the end of the fixed period. That is called redeemable debenture. Debentures are payable at the end of the fixed period. That is called redeemable debenture. लेकिन फिक्स पीरियड इज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. एंड आप बोल सकते हो फिक्स पीरियड क्या है. आज का डेट क्या है, 18 जुलाई 2020. 10 साल के बाद, 10 एक दिन पहला पकड़ने का, 17 जुलाई 2030. बराबर है. अभी 2030 में ऐसा स्टैम्प मार के आएगा, उसमें लिखा होता है मैच्योरिटी डेट 17 जुलाई 2030. अभी मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो आपको पैसा दिया जाएगा. डेट इज़ कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर्स. इज इट क्लियर? डेट इज़ कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर. समझ में आया? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक you have any doubts. Simple. The debentures which are redeemable at the specific period is called redeemable debenture. It is paid, the debenture will get back the amount on the maturity date. It is called redeemable debenture. The provisions of repayment is made in trust deed. अब बोले सर इसका पैसा क्या है, तो ट्रस्ट डीड जो बना है, जो पहले इसमें देखा था उसमें ऑलरेडी प्रोविजन किया होता है, तो इसमें टेंशन नहीं है. आप बोले सर पैसा नहीं मिला, क्या है, तो ट्रस्ट डीड जो स्टार्टिंग में बना है उसमें ही बन जाता है. यदि क्लियर? चलो आगे जाएंगे. अभी क्या दिया है, redeemable debenture and irredeemable debenture. Simple, उल्टा. Debenture which is not payable during the, which is not payable or which is not payable on the fixed period, it is called redeemable. अब क्या है, the debenture holder which get amount at the lifetime of the company, that is called irredeemable debentures. देख लिया. शट डाउन, कंपनी जब बंद होने आती है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जब बंद होती है तब पैसा दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड द irredeemable debenture. The debentures which are paid or which are payable at a time of winding of the company is called redeemable debenture. इसने एक वर्ड लिक्विडेशन दिए है, liquidation of the company. They are repayable only on liquidation of the company or when there is breach of any condition or when some contingency arises. Contingency मतलब क्या है, अभी ये समझ के लेने का है. contingency मतलब क्या है, irredeemable क्या है, आपको पैसा फिक्स पीरियड नहीं है, उससे मैच्योर डेट होता ही नहीं है, फिक्स पीरियड नहीं होता है. जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग होगा, तभी आपको कब पैसा दिया गया, तब तक पैसा देने वाले नहीं है. ये दिमाग में ध्यान रखने का है. irredeemable पर लिखते वक्त बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं बोला उल्टा लिखो ना, सिंपल है. तो डिबेंचर विच आर नॉट पेड ऑन पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर फिक्स पीरियड, दैट इज कॉल्ड irredeemable डिबेंचर्स. इट इज़ पेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. सिंपल, इतना लिखने का है. अभी इसका समझ चलने नहीं है क्या, वो कॉन्टिजेंसी है क्या है. अभी कंपनी शट डाउन होने वाली है, कंपनी बंद होने वाली है, तो उस समय कॉन्टिजेंसी है ना, कंपनी बंद होने ली है. कभी पार्टनर बोलता है नहीं मेरे को रहने का नहीं है तो जाने का है. बीके में पार्टनरशिप फॉर्म आप देखा होगा, उसमें है, या उसी में पार्टनरशिप फॉर्म का नाम का टॉपिक है. जब डिबे वो बोलता है कि मेरे को रहने का नहीं है, आई डोंट वांट टू लीव हियर, आई वांट टू गो आउट ऑफ दैट, मेरे को जाने का है, तभी उस टाइम में ये काम में आता है. तो उस टाइम में कंपनी शट डाउन होती है, बंद होती है, तो आपको पैसा दिया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर्स, मतलब कॉन्टिजेंसी है. तो ये आप लोग को बीके में एक टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, तभी भी इसमें कुछ समझ में आएगा, उस पर तभी भी इसमें ये वर्ड है. जब पार्टनर या कंपनी कुछ प्रॉब्लम अवेयर होता है या कंपनी बंद होती है पहले, उस समय कंपनी पहले क्या करती है, बाबा जो पहला उसको देने का, मैंने पहले बताया, डिबेंचर को पहले देने का, बाद में प्रेफरेंस शेयर्स को देने का, बाद में इक्विटी शेयर्स को लास्ट में देने का, लेकिन धीरे धीरे आगे जाने का है. उसके बाद आता है सी, convertible debenture. Debentures which are converted into equity shares, that are convertible debenture.
The debentures which are converted into convertible debenture, that is called convertible debenture. The debentures which are converted into equity shares, that are called convertible debenture. अभी जब तक मेरे पास डिबेंचर है तब तक क्या होगा, तब तक मुझे क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन कल, आज के बाद, मतलब आज मैंने कन्वर्ट किया, आज तक मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कल से मुझे इक्विटी शेयर्स का रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होता है, मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। आई विल गेट द डिविडेंड। ध्यान देने का, शेयर होल्डर गेट डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट, शेयर होल्डर गेट डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे पास कौन सा, अपने पास कौन सा डिबेंचर है, कन्वर्टिबल। हम लोग आज कन्वर्ट कर रहे तो आज तक हमको क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जैसा हम लोग इक्विटी शेयर्स में गए तो हमको इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, हमको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर पे डिविडेंड फिक्स होता नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, फ्लक्चुएशन, फ्लेक्सिबल होता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, डिविडेंड ज़्यादा, कंपनी के प्रॉफिट्स कम है, डिविडेंड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये ध्यान देने का है। तो ये हो गया आप लोगों का कन्वर्टेबल डिबेंचर। आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट्स। Debentures which are converted into equity so that are called convertible debenture. The debenture holder have the rights of debenture till conversions. After the conversion, all the rights of share is applicable. At the time debenture will get what? Dividend. डिबेंचर को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। वो कौन बन गया, डिबेंचर होल्डर नहीं हुआ, अभी वो क्या बन गया, इक्विटी शेयर। तो ऑल शेयर्स का इसको लागू होगा। सिंपल लिखने का, द डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दैट डिबेंचर इज कॉल्ड कन्वर्टिबल डिबेंचर। द डिबेंचर होल्डर विल गेट fixed rate of interest till conversion. After conversion, the debenture holder is no more, they are the equity shareholder, so they will get the dividend. Full stop. और उसके बाद लास्ट 8 वाला नॉन कन्वर्टेबल, उल्टा लिखने का, the debentures which are not converted into equity shares, that are called non convertible debentures. They will get back the amount on the maturity date. जो मैच्योरिटी डेट स्पेसिफिक डेट दिया है उस समय उनको पैसा दिया जाएगा, मनी उनको दिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। द डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दैट आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। द डिबेंचर्स आर रिडीम ऑन मैच्योरिटी डेट, ऐसा वर्ड डील है। तो उसको क्या रहने का, उनको पैसा कब मिलेगा, मैच्योरिटी डेट पे उनको पैसा दिया जाएगा। एंड आउट इन दिस, आई थिंक एनी डाउट्स। फिर से आई एम रिपीटिंग टाइप्स ऑफ डिबेंचर, STRC। S स्टैंड फॉर सेक्योर्ड, T स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र, R स्टैंड फॉर रिडीमेबल, मैंने क्वेश्चन में रीपेमेंट दिया है लेकिन रिडीमेबल ध्यान देने का, और C स्टैंड फॉर कन्वर्जन। सेक्योर्ड 8 टोटल कितना हो गया, 8। सेक्योर्ड डिबेंचर, अनसेक्योर्ड डिबेंचर। T ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र में 2 आएगा, पहला कौन है, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बाद में कौन आएगा, बेगर डिबेंचर। R स्टैंड फॉर वॉट, रेडीमेबल, तो रेडीमेबल डिबेंचर, इरेडीमेबल डिबेंचर। लास्ट में C दिया है, C मतलब क्या, कन्वर्जन। पहला कौन सा आएगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर, बाद में कौन सा आएगा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इज इट क्लियर? ये टॉपिक पूरा इधर ख़त्म हो गया। अभी कल से हम लोग नया जाएंगे, कल में, और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड we'll complete the 2 ones. So your topic will be over. Once again, I'm saying that you have to take down these notes perfectly. Okay, thanks.